every love affair is a failure. One tries to hide the fact as long as possible. The reason is that your real love is for the eternal self hidden behind the curtain, and you never look behind the curtain. Why is it we all so desperately want to be loved? Because we are so desperately empty, lonely. Because a mind that's frightened obviously cannot love. A mind that is self-concerned with its own ambitions, greeds, fears, guilt, suffering has no capacity to love. Have you ever loved a girl? Of course. Okay. And what did it teach you? What did it teach me? That love is something far beyond what I took it to be. There's a rapper, I think his name is Tyler, the Creator. So he said that people cry about not receiving love in their life and then victimizing themselves. But the actual key here is if you feel like you're not receiving something, go give it out in the world. Do you agree? Of course not. You don't agree? Do we have the guts to receive love when it comes? Do we have the eyes to identify love when it comes? How will you get love if you keep blocking it in every instance? Are you even prepared to receive love? And love is dangerous. You won't receive it. Love destroys you. When love beckons to you, follow him, though his ways are hard and steep. And when his wings enfold you, yield to him, though the sword hidden among his pinions may wound you. This is an amazing poem, Love, written by Khalil Gibran. वो जो लिस्ट है ना कुछ लोगों की who are just close to my heart, उन्हीं में से एक है खलील गिब्रान, जो कि मेरे फेवरेट पोएट है. वेदांत कहीं ना कहीं जिस नॉन डुअल फिलॉसफी की तरफ इशारा करता है, स्पेसिफिकली अद्वैत वेदांत, वही नॉन डुअलिज्म आपको इनकी पोएम में भी हर शब्द में देखने को मिलेगी. When love beckons to you, follow him, though his ways are hard and steep. तो जब आपका प्यार, आपका हार्ट, जो कि प्रतीक है सत्य का, आत्मा का, जब उसकी आवाज़ आपको पुकारे, आपकी वो उच्चतम संभावना आपको पुकारे, जो मंजिल है ईगो की, जो स्वभाव है अहम का, एक ही काम है फिर अहम का, जो कि हर लवर का होता है, और वो ये कि वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बस वो वफ़ा निभाए अपने उस प्रेमी से. हाँ, हो सकता है कि रास्ता बहुत कठिन हो, बहुत हार्ड हो, स्टीप हो, खतरों से भरा हुआ हो, इतना खतरनाक हो कि जब उस प्रेमी की आवाज़ खींच रहे हो आपको उसकी तरफ, उसके पंखों के अंदर कहीं ना कहीं जकड़ रही हो आपको, तो हो सकता है कि शुरुआती जो पंख हैं जो घेर रहे हैं आपको, वो चुभे, बहुत ज़्यादा चुभे, कांटों की तरह चुभे, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वफ़ा ज़रूर निभानी है हमको. And when he speaks to you, believe in him, though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden. वो बस आपसे ही बात करेगा, क्योंकि आपका ही सोर्स है वो, आपके ही भीतर है वो. तो उस पल में, उस क्षण में बस एक ही जिम्मेदारी होगी फिर अहम की, कि वो सुने, विश्वास करे. भले उसकी आवाज़ आपके उन सारे सपनों को तोड़ देती हो, जब आप उसको सुने, आपको पता हो कहीं ना कहीं कि यार इसकी आवाज़ मैंने सुन ली ना, तो वो सारे सपने जो मैंने देखे हैं ना क्विक सक्सेस के लिए, वो सब टूट जाएंगे. लेकिन फिर भी एक ही कर्तव्य है अहम का कि वो वफ़ाई निभाए. For even as love crowns you, so shall he crucify you. Even as he is for your growth, so is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caress your tenderest branches that quiver in the sun, so shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. तो भले ही वो बुला तो रहा हो
आपको उस रास्ते तक। लेकिन जैसे आप हैं वैसे नहीं पहुंच पाएंगे आप। वो अगर आपकी ताजपोशी करने के लिए आपको बुला रहा होगा तो आपको राजा बनाएगा भी ज़रूर। और राजा बनने के लिए अभी जो आपका आम जीवन है उसे भी क्रूसिफाई करेगा ज़रूर, क्योंकि उसे शायद पता है कि जब तक रूट्स गहरे नहीं होंगे तब तक आपके टेंडर से टेंडर ब्रांचेस भी सूर्य की रोशनी में चमक नहीं सकते अगर कोई बहुत गहरा तूफान आ जाए सामने तो। Like sheaves of corn, he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked. He sifts you to free you from your husks. He grinds you to whiteness. He kneads you until you are pilot. And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast. क्योंकि अगर अहम को, ईगो को सब कुछ पता ही होता कि उसे अपनी नियति तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है तो वो कर चुका होता ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। और शायद जानती है वो वॉइस उस प्रेमी की, ये कमजोरी जानती है अहम की कि वो असमर्थ है खुद को देख पाने में। शायद यही कारण है कि वो पहले उसे उस लायक बनाना चाहती है, शायद इसीलिए दर्द देना चाहती है कुछ इस तरीके से कि अब वो बाकी ही ना रहे, झुलस जाए वो अस्तित्व उस सेक्रेड फायर में जहाँ जल के वो फीस्ट बन सके अहम, कि वो शाही दावत बन जाए खुद गॉड्स का, ईश्वर का, प्रकृति का। जैसे मानो ये सारी परीक्षाएं ही वो इसलिए ले रहा हो ताकि अहम बेहतर हो सके, ऊपर उठ सके अपनी उस नीची चेतना से जो वो बन बैठा था, जो उसे बनना नहीं था। All these things shall love do unto you, that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragrant of life's heart. तो ये सारी चीजें ही वो प्रेम इसलिए करवा रहा है शायद ताकि हम अपनी ही संभावना के उन राजों को जान सके, उन सीक्रेट्स को जान सके जो प्रकृति ने उसे दिए हैं, और उस नॉलेज के साथ फिर वो उस सोर्स का हिस्सा बन सके, उस सोर्स तक पहुंच सके। But if in your heart you'd seek only love's peace and love's pleasure, then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing floor into the seasonless world where you shall laugh, but not all your laughter, and weep, but not all your tears. लेकिन अगर आप उन चुनौतियों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की राह में चल भी सके, तो यही अच्छा है आपके लिए कि आप लौट जाएं, भूल जाएं ये प्रेम व्रेम, भाई आपके बस की बात नहीं है। अब जाएं उसी सीजनलेस वर्ल्ड के पास जहाँ जब आप हंसेंगे भी ना तो वो आपकी हंसी नहीं होगी, या जहाँ जब आप रोएंगे भी ना तो वो आपके आंसू नहीं होंगे, बस इसलिए रोना पड़ेगा क्योंकि लोग आसपास के रो रहे हैं। कुछ भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपकी जो संभावना थी वो तो आपका प्रेम था जो आवाज दे रहा था आपको। लव गिव्स नॉट बट इटसेल्फ and takes not but from itself. Love possesses not, nor would it be possessed, for love is sufficient unto love. तो पहली बात तो लव ने कोई ठेका नहीं ले रखा है उस प्रेमी ने कि भाई उसको कोई खास मोहब्बत है आपसे, नहीं। वो सोर्स तो पूरी दुनिया का सोर्स है, सबका सोर्स है, कॉमन सोर्स है, उस हर प्रेमी के लिए अवेलेबल है जो उस तक पहुंचने के रास्ते में चलने से डरेगा नहीं। उसको नहीं पड़ी है कोई एक स्पेसिफिक ईगो या एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक स्पेसिफिक व्यक्तिगत अहंकार को अपने पास बुलाने की, क्योंकि वो अपने आप में सफिशिएंट है। वो ना ही आपको पजेस करने की कोशिश कर रहा है और ना ही उसे पजेस किया जा सकता है। वो अपने अलावा कुछ और नहीं दे सकता आपको, बस खुद को ही दे सकता है। या तो वो उस उच्चतम संभावना को दे सकता है आपको, या तो फिर कुछ भी नहीं। और अगर ले भी सकता है ना आपसे तो बस आपकी उच्चतम संभावना को ही ले सकता है और कुछ भी नहीं। When you love, you should not say God is in my heart, but rather I am in the heart of God. जब भी आप प्यार इस शब्द को यूज करने की हिमाकत करें या प्रेम की तरफ बढ़ने की हिमाकत करें तो ये मत कहे कि मेरे अंदर है मेरी ऊंची संभावना जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर है वो आत्मा, कोई सोल जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। नहीं,
बल्कि ये कहें कि मैं आत्मा में हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मेरे अंदर वो समा जाए, कि मेरी व्यक्तिगत आत्मा बन जाए। अगर इतना ही बड़ा होता कि वो मेरे अंदर समा जाए तो इतना तड़प रहा होता क्या उसे पाने के लिए? इतनी औकात कहाँ से आ गई मेरे पास कि मैं अपने अंदर उसे समा लूँ? बल्कि ये कहना फिर भी जायज़ होगा कि मैं उसके अंदर हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं बस उसके एग्जिस्टेंस का, उसके इस विराट एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा। और वो दया कर रहा है मुझ पे, मुझे आवाज़ दे के। वो चाहता तो मुझे आवाज़ नहीं भी दे सकता था, उसको क्या पड़ी थी? शायद ऐसे बहुत मिल जाते उससे जो जान देने के लिए राज़ी हो जाते उसकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता थी उसकी कीमत। लेकिन फिर भी मुझ जैसे बेवकूफ़ को, मुझ जैसे नाचीज़ को उसने आवाज़ तो दी। And think not, you can direct the course of love. For love, if it finds you worthy, directs your course. ये गुस्ताखी भी मत कर लेना सोचने की कि तुम उस उच्चतम संभावना को अपने हिसाब से नचा सकते हो, अपने रूल्स के हिसाब से, अपने स्वार्थों के हिसाब से, अपनी व्यक्तिगत कामनाओं के हिसाब से नचा सकते हो, अपने कंफर्ट जोन में रहे रहे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कोई नहीं होते उसे नचाने वाले, बल्कि वो अगर चाहेगा ना कि तुम अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचो, उस तक पहुंचो, तो वो तुम्हें नचाएगा कि तुम खुद को ही भूल जाओगे। Love has no other desire but to fulfill itself. But if you love and must needs have desire, let these be your desires. वो तो पूरा ही है, वो पूर्ण है, उससे कोई डिजायर नहीं पूरी करना भाई, वो सोर्स है। इसलिए वो तो बस चुनेगा उन काबिल शख्सियतों को जो उस तक पहुंचने की ईमानदारी दिखा सके बिना अपने स्वार्थों के, जो उस तक पहुंचने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो जाए कि किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार हो जाए, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। वो बस उन्हें ही चुनेगा। To melt and be like a running brook that sings its melody to the night, to know the pain of too much tenderness, to be wounded by your own understanding of love and to bleed willingly and joyfully. क्योंकि उस तक पहुंचने का तो बस एकमात्र और एकमात्र एक ही रास्ता हो सकता है कि हम willingly, joyfully वो सारी गुस्ताखियाँ झेलने के लिए तैयार हो जाए, वो सारे नखरे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए जो उसका प्रेमी उससे करने के लिए कह रहा है। जब अहम वो ब्रूक बन जाए, वो नहर बन जाए जो किसी चांदनी रात में बहती है, जिसे अपना पता नहीं होता कि वो कहाँ बहेगी, कि कोई उस नहर को खराब तो नहीं कर देगा, कैसे रास्ते आएंगे सामने, वो टेढ़े मेढ़े होंगे या सीधे सीधे उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते होंगे, लेकिन फिर भी वो उस चांदनी रात की रोशनी को समेटे हुए लहराते हुए चलती है। इसलिए नहीं कि वो कहीं तक पहुंचे, पर इसलिए क्योंकि पसंद है उसे बहना। क्योंकि अगर घाव ही नहीं लगे तो फिर घावों के भरने से भी प्यार कैसे हो सकता है? अगर आपको ये ही नहीं पता कि प्यार का ना होना क्या होता है, तो फिर उस प्यार को भी कैसे महसूस कर पाएंगे आप? To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving. To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy. तो इसीलिए शायद वो प्रेम करना भी और उस प्रेमी तक पहुंचना भी सिर्फ और सिर्फ उसी अहम के लिए संभव है जो चाहे कितने भी घाव क्यों ना मिल रहे हो या कितने भी ताज क्यों ना मिल रहे हो, किसी भी स्थिति में वो अपने प्रेमी को ना भूले, बल्कि थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे कि उस दिन में, उस पूरे दिन में कम से कम उससे प्यार कर पाने की काबिलियत तो नसीब हुई कि चलो आज का दिन भी बीत गया, ध्यान के साथ, प्रेम के साथ बीत गया, कि मैं तुम्हें चाह सका, तुम तक पहुंचने की कोशिश कर सका। To return home at eventide with gratitude and then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips. और यही शायद फिर वो मंजिल भी है। कितना डूब जाएं आप आपकी उच्चतम संभावना की राह में चलते चलते कि आप भूल ही जाए कि कोई घाव लगे भी थे। और शायद ये चलते रहना यही वो प्रेम है कि आप हर रात चैन से सो पाएंगे अपने लिप्स में उस प्रेयर के साथ कि शुक्र है मैं उस रास्ते में चल रहा हूँ। So that was it for this video, guys.
आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको खलील गिब्रान की सोच का, उनकी फिलॉसफी का, जो उनकी पोयम के माध्यम से एक्सप्रेस होती है, उसकी वेदांतिक थ्योरी दिख पाई होगी। ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज इस चैनल में आगे भी आती रहेगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।